بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبر دنیا بھر سے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ آسٹریلوی ساحل پر بڑا حملہ، ساحلی علاقے بونڈی بیچ پر فائرنگ میں 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ہدف سڈنی کی یہودی کمیونٹی تھی۔ مشتبہ ملزم نوید اکرم کو بھی گرفتار کرنے کا پولیس نے کیا دعویٰ۔ شام میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر صدر ٹرمپ کا سخت رد عمل، شدید جوابی کارروائی کا اعلان۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی وسیع پیمانے پر چھاپہ مار کارروائیاں، متعدد فلسطینی گرفتار۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا، سردی، بھوک اور پیاس سے اموات میں اضافہ۔ ہمارے لیے ہمسایہ ممالک کی سلامتی اور استحکام کی کلیدی حیثیت ہے، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان۔ توانائی کا تحفظ، وقت کی ضرورت۔ بھارت نے ماحولیاتی وعدے وقت سے پہلے پورے کیے۔ قومی یوم توانائی تحفظ پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا خطاب، ایوارڈ یافتگان اور پینٹنگ مقابلے کے فاتحین کی عزت افزائی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل اردن کا دورہ کریں گے۔ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے یہ دورہ۔ اور جرمنی میں کم عمر نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کی حمایت، تجویز کو عوامی سطح پر خاصی حمایت حاصل۔ اور ناظرین، پیش خبریں تفصیل سے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے معروف ساحلی علاقے بونڈی بیچ پر اتوار کے روز فائرنگ کے ایک سنگین واقعے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 2 مسلح افراد نے بونڈی بیچ پر موجود شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ حملے کے نتیجے میں متعدد افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے بونڈائی کے ساحل پر فائرنگ کے واقعے کو آسٹریلوی عوام پر ایک منصوبہ بند حملہ قرار دیا ہے، جو ایک ایسے دن ہوا جو خوشی کا دن ہونا چاہیے تھا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعلیٰ کرس مینس نے تصدیق کی ہے کہ حملے میں ہلاک ہونے والے 12 افراد میں ایک حملہ آور بھی شامل ہے، جبکہ دوسرا حملہ اور زخمی حالت میں پولیس کی حراست میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کے خلاف صفاقانہ دہشت گردی اور شرانگیزی یہود دشمنی کا عمل ہے، جس نے ہماری قوم کے دل پر ضرب لگائی ہے۔ وزیر اعظم البانیز نے مزید کہا کہ اس نفرت اور تشدد کے گھناؤنے عمل کے لیے آسٹریلیا میں کوئی جگہ نہیں۔
न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर मेल लेनियन ने के मुताबिक इस मौके पर 1000 से ज़ायद अफराद यहाँ मौजूद थे जो यहूदी त्यौहार हनुका का जश्न मना रहे थे। पुलिस ने इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया है। हमलावरों की महरक़ात के बारे में फ़िलहाल कुछ वाज़ेह नहीं। इसराइली सदर का कहना है कि यहूदियों पर निहायत सफ़ाकाना हमला है। इसराइल के सदर आइज़ैक हर्ज़ोग ने बोंडाई पर पेश आने वाले वाक़े को यहूदियों पर निहायत सफ़ाकाना हमला करार दिया है। सदर ने कहा कि हमारे सिडनी में मौजूद बहन भाइयों को बदतरीन दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है। यहूदियों पर निहायत सफ़ाकाना हमला किया गया है जो बोंडाई बीच पर हनुका की पहली शमा रोशन करने के लिए आए थे। मुक़ामी वज़ीर आला ने भी अपने बयान में कहा कि इस हमले की मनसूबाबंदी सिडनी की यहूदी कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए की गई थी। उनके मुताबिक जो रात अमन और खुशी की होनी चाहिए थी वह खौफनाक और शैतानी हमले से ताराज हो गई। इस ज़िम्न में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ऑस्ट्रेलिया की बॉन्डी बीच पर उस वक्त खौफ और हिरास फैल गया जब मसल्ला अफराद वहां पहुंचे और लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। ख्याल किया जाता है कि 2 हमलावर तकरीबन 50 राउंड फायरिंग में मुलविस थे। इब्तदाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा हमलावरों में से एक की शनाख्त कर ली गई है और उसकी तस्वीर भी ली गई है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने इस तस्वीर को शेयर किया है। मुलजिम का नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है। ABC न्यूज़ के मुताबिक हमलावर की उम्र 24 साल है। तस्वीर में से बंदूक पकड़े और गोला बारूद का एक बड़ा ज़ख़ीरा उठाए हुए देखा जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वस्ती शाम में पेश आने वाले एक हमले में 2 अमेरिकी फ़ौजियों और एक गैर फ़ौजी मुतरजिम की हलाकत पर शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ इंतहाई सख्त जवाबी कार्रवाई का अहद किया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ये वाक़या हफ्ते के रोज़ वक्त पेश आया जब दाइश के एक मुबैना रुकन ने अमेरिका और शाम के मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी गश्त पर फायरिंग की। हमले में 2 अमेरिकी फ़ौजी और एक मुतरजिम हलाक हो गए जबकि 3 दीगर फ़ौजी ज़ख्मी हुए जिनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। इसराइल ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि उसने गजा में हमास के काला कमांडर को सख्त कर दिया जब इस इलाके के जुनूब में एक धमाका खेज डिवाइस फटने से 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। हमास ने एक बयान में रायद साद की मौत की तस्दीक नहीं की है। इसमें कहा गया है कि गजा शहर के बाहर एक गाड़ी को निशाना बनाया गया जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। साद ने हमास के अहदेदार के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के इंचार्ज के तौर पर काम किया था और इससे कबल अस्करी पसंद ग्रुप के ऑपरेशंस डिवीज़न की क़यादत की थी। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक जंगबंदी के बाद से गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों और फायरिंग से कम अज़ कम 386 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइल की 2 साला जारहियत में 70,650 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। मगरबी किनारे में कशीदगी एक बार फिर बढ़ती देखी जा रही है जहां इसराइली फ़ौज ने अल-कलील, नाबलस, जनीन और तौल-करीम समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ करते हुए घरों की तलाशी ली और मुतादिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। जबकि इसी दौरान मुख्तलिफ मकामात पर इसराइली आबादकारों की जानिब से फायरिंग और हमलों के वाक़यात भी सामने आए हैं। अल-खलील शहर में इसराइली फोर्सेस मुतादिद इलाकों में तैनात की गई। इस दौरान इसने फ़लस्तीनियों के घरों की तलाशी ली और मुतादिद अफराद को हिरासत में लेने के बाद उन्हें फील्ड तफ्तीश का निशाना बनाया। गजा की पट्टी में शदीद तूफ़ान और बारिश के साथ साथ जमा देने वाली सर्दी के बायस सिर्फ 24 घंटों के दौरान 14 बेघर फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन सर्दी की वजह से अपनी जानें गंवा बैठे हैं। इसके अलावा शुमाली गजा के इलाके और रमाल महल्ले और अलशाद कैंप में इमारतें गिरने से मज़ीद 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। खान यूनिस में शदीद सर्दी की वजह से एक फ़लस्तीनी बच्चा और गजा शहर में 2 मज़ीद बच्चे जान से हाथ धो बैठे। शहाब न्यूज़ एजेंसी ने इत्तला दी है कि गजा की पट्टी पानी के गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ गजा में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के डायरेक्टर जनरल ने खबरदार किया था कि दर्ज हरारत में शदीद कमी और बारिश का पानी पनाहगज़ीनों के कैंपों में दाखिल होने से बच्चों और बुज़ुर्गों और बीमारों की जानें मौत के ख़तरे से 2-4 हो गई हैं। मुनीर अल-बर्श ने मज़ीद कहा कि बुध की सुबह से शदीद बारिश ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों क़ैमों को डुबो दिया है और यह सूरत हाल इस वक्त पेश आ रही है जब पनाहगज़ीन बुनियादी सहूलियात की शदीद क़िल्लत, अहम ख़दमात की अदम मौजूदगी और इसराइली मुहासिरे से निबरत आज़मा हैं। उन्होंने इज़हार किया कि कोई भी मौसमियाती निज़ाम कमज़ोर तबक़ात के लिए एक बराह रास्त ख़तरा बन जाता है और दर्ज हरारत में कमी शदीद लर्जिश, हाइपोथर्मिया और सांस के मसाइल का भी सबब बनती है जो ख़ास तौर पर इन हालात में मौत का बायस बन सकती है जहाँ गजा के लोग कहत और कमज़ोर मुदाफ़ियत का सामना कर रहे हैं। फ्रांस का अल्बानिस ने लंदन में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के हवाले से मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात ज़ोर देकर कही कि गजा में नस्लकुशी का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए और न सिर्फ इसराइल बल्कि नस्लकुशी में उसका साथ देने वाले तमाम ममालिक पर पाबंदियाँ आयद की जाएँ।
مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ تمام ممالک کو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی قبضہ جاری رکھنے والی حکومت کی مدد اور تعاون بند کرنا تمام ممالک کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت اور اس کی ہتھیار فراہم کرنے والے ممالک امریکہ، جرمنی اور اٹلی کو غزہ کی تعمیر نو کے اخراجات بھی اٹھانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے قبرص کے اڈوں سے فراہم کردہ خدمات کے ذریعے نسل کشی میں برطانوی ملوث ہونے کی سنگین تحقیقات کرائے جانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے غزہ میں 2 سال سے جاری نسل کشی کو 60 سال کے استثناء کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نسل کشی نہیں رکے گی جب تک لندن، روم، برلن یا پیرس کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کے لیے مشرقی ہمسایہ ممالک کی سلامتی اور استحکام بہت اہمیت اور کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ افغانستان کے بارے میں تہران میں ہونے والے اجلاس کی تفصیلات سے متعلق نمائندے کے ایک سوال کا جواب میں وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ افغانستان سمیت ہم نے تمام متعلقہ ممالک کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ علاقائی ممالک کی معاملات میں امریکہ کی مداخلت اور امریکی صدر کے اس بیان کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں اگر کہا کہ ایران راضی ہو جاتا ہے تو ہم صرف اس کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بناتے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ میرے خیال میں شام کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے کا بیان اس بات کا کھلا اعتراف ہے کہ امریکی پالیسیاں مداخلت پسندی پر مبنی ہیں۔ البتہ یہ پالیسی خطے اور دیگر ممالک میں اس کی ناکامی کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ ہمارے خطے میں بھی امریکی مداخلت کی وجہ سے جو عدم استحکام پیدا ہوا ہے اور دہشت گردی نے جنم لیا ہے، بدقسمتی سے آج تک ہمارے خطے کو اس صورتحال کا سامنا ہے، اور امریکی خصوصی نمائندے نے آسانی سے کہہ دیا کہ یہ غلط پالیسی تھی۔ ناظرین، وقت وقفے کا، جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اہل ذوق جانتے ہیں کہ زیور صرف آرائش نہیں، یہ خاندان کی شان، تہذیب کی پہچان اور دل کا قیمتی جام ہے۔ ہیرا بائی جویلرز اسی نوابی روایت کا آشنا ہے۔ اینٹیک، جرابی اور کندن تک ہر کلیکشن، چندن ہار، چمپا کلی، ست لڑا کا نور، ہاتھوں کے لیے چوڑیاں اور کڑے، تھمنی پر چمکتی چاند بالی، ہیرا و الماس، یاقوت، زمرد، موتی، نورتن، برائڈل اسٹائلش اسٹوڈیو میں ہر خواب کو حقیقت کا لباس پہناتی ہے۔ 100% پیور سونے کی قدر، ہیرا بائی جویلرز، ناگ پنڈی اور ماسا ٹینک، حیدرآباد۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ آسٹریلوی ساحل پر بڑا حملہ، ساحلی علاقے بونڈی بیچ پر فائرنگ میں 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ہدف سڈنی کی یہودی کمیونٹی تھی۔ مشتبہ ملزم نوید اکرم کو بھی گرفتار کرنے کا پولیس نے کیا دعویٰ۔ شام میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر صدر ٹرمپ کا سخت رد عمل، شدید جوابی کارروائی کا اعلان۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی وسیع پیمانے پر چھاپہ مار کارروائیاں، متعدد فلسطینی گرفتار۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا، سردی، بھوک اور پیاس سے اموات میں اضافہ۔ ہمارے لیے ہمسایہ ممالک کی سلامتی اور استحکام کی کلیدی حیثیت ہے، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان۔ توانائی کا تحفظ، وقت کی ضرورت، بھارت نے ماحولیاتی وعدے وقت سے پہلے پورے کیے۔ قومی یوم توانائی تحفظ پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا خطاب، ایوارڈ یافتگان اور پینٹنگ مقابلے کے فاتحین کی عزت افزائی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل اردن کا دورہ کریں گے۔ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے یہ دورہ۔ اور جرمنی میں کم عمر نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کی حمایت، تجویز کو عوامی سطح پر خاصی حمایت حاصل۔ امریکہ کے روڈ آئی لینڈ میں براؤن یونیورسٹی کی ایک عمارت میں زبردست فائرنگ ہوئی ہے۔ اس فائرنگ میں 2 افراد ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ حملے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔
FBI इस मामले की तहकीकात कर रही है। यूनिवर्सिटी की बार्स और होली इंजीनियरिंग बिल्डिंग में होने वाली फायरिंग में हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा कि मजीद 8 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और उनकी हालत नाजुक लेकिन मुस्तहकम है। पुलिस इलाके की तलाशी ले रही है। अलर्ट में कहा गया है कि पुलिस फोर्स इलाके में सरगर्म है। यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया कि उस वाक़े के बाद काफ़ी खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल है। कहा गया कि पुलिस मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त के लिए काम कर रही है, जबकि अस्पताल का अमला उन लोगों की शनाख्त कर रहा है जिन्हें तिब्बी इलाज के लिए ले जाया गया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी ने तलबा, अमले और रिहायशियों पर जोर दिया कि वो पुलिस की हिदायत पर अमल करते रहें और इलाके से दूर रहें। अलर्ट में कहा गया कि हमारी कम्युनिटी की हिफाजत सबसे पहले आती है। अफसरान पूरे कैंपस में फैल गए हैं। पुलिस की डिप्टी चीफ टमोथी ओहारा ने कहा है कि मुश्तबा शख्स सियाह लिबास में मलबूस एक मर्द था जिसे आखिरी बार इंजीनियरिंग की इमारत से निकलते हुए देखा गया था जहां हमला हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से मंगल तक उर्दन का दौरा करेंगे। शाह अब्दुल्ला दुअम बिन अल हुसैन की दावत पर मोदी ये दौरा कर रहे हैं। उर्दन के साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यह बाज़ाब्ता पहला राब्ता होगा जो दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़ारती ताल्लुक़ात के 75 साल मुकम्मल होने पर हो रहा है। नई दिल्ली और अम्मान के दरमियान आला सतही सियासी राब्ते रहे हैं। भारत और उर्दन के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ात हैं और भारत उर्दन का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की तिजारत होती है। उर्दन भारत का खादों का और ख़ास तौर पर फॉस्फेट्स और पोटैश का अहम सप्लायर है जो भारत के ज़रूरी शोबे के लिए काफ़ी अहम है। इस ताउन की एक नुमाया मिसाल उर्दन भारत फर्टिलाइज़र कंपनी है जो इंडिया के IFFCO, इफ़को और उर्दन के फॉस्फेट्स माइन कंपनी के दरमियान 860 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक जॉइंट वेंचर है। यह कंपनी फॉस्फोरस एसिड तैयार करने और भारत को बरामद करने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा कपड़े की भारत की तकरीबन 15 कंपनियां उर्दन के क्वालिफाइड सनती जोन में काम कर रही हैं। ये कंपनियां उर्दन के आज़ाद तिजारती समझौतों और अमेरिका, यूरोप और अरब खित्ते के साथ खुसूसी तिजारती समझौतों से फ़ायदा उठाकर दुनिया भर के बाज़ारों में अपना सामान भेज रही हैं। ओमान और मुंबई के दरमियान बिलावास्ता परवाज़ों की शुरुआत से दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते में इजाफा हुआ है और नई दिल्ली के साथ बिलावास्ता परवाज़ चलाने का मंसूबा है। उर्दन मुजवज़ा भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इक़्तिसादी कॉरिडोर में एक अहम शराकतदार के तौर पर भी देखा जा रहा है और तवक्का है कि वो अहम इलाकाई बाज़ारों को जोड़ने में कलीदी रोल अदा करेगा। जर्मनी में अवामी राय एक नए रुझान की अक्कास बनती जा रही है जहां निफ से ज़ायद शहरी 16 साल से कम उम्र नौजवानों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के हक़ में नज़र आते हैं, जबकि एक तबका इस तजवीज़ से इख्तिलाफ भी रखता है। जर्मनी में 16 साल से कम उम्र बच्चों और नौजवानों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को महदूद करने की तजवीज़ को अवामी सतह पर खासी हिमायत हासिल होती देखी जा रही है, जहाँ एक हालिया सर्वे के मुताबिक निफ से ज़ायद शहरी इस पाबंदी के हक़ में राय रखते हैं। जर्मन अखबार की इतला की इशाअत के लिए किए गए एक अवामी सर्वे में बताया गया है कि 60% शुरका 16 साल से कम उम्र अफराद के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के हामी हैं, जबकि 24% ने इस तजवीज़ की मुखालिफत भी की है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तवानाई को महफूज रखना अब सिर्फ एक मुतबादिल नहीं रह गया है बल्कि ये मौजूदा ज़माने की एक ज़रूरत है। वो तवानाई को महफूज रखने के कौमी दिन के मौके पर आज नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब कर रही थीं। सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि तवानाई की हर एक यूनिट की बचत से फितरत के तई ज़िम्मेदारी के एहसास की अक्कासी होती है और ये मुस्तकबिल की नस्लों के तई ज़िम्मेदारी और एहसास का भी मज़हर है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने तवानाई को महफूज रखने और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की मुंतकिली के शोबों में अहम कदम उठाए हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के ताल्लुक से अपने वादे को मुकर्रर वक्त से पहले ही पूरा कर लिया है और ये तवानाई की सलाहियत में इजाफे और कार्बन के अखराज को कम करने की सिमत एक अहम कामयाबी है। इस मौके पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने तवानाई को महफूज रखने से मुताल्लिक़ कौमी अवार्ड्स 2025 के फातहीन और इसी मौजू पर पेंटिंग के कौमी मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वालों की इज्जत अफजाई भी की। हैदराबाद के ऊपर स्टेडियम में खेले गए मेसी और वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के दरमियान हुए दोस्ताना फुटबॉल मुकाबलों का हर तरफ चर्चा जारी है। सिंगारनी आरा टीम की जानिब से मैदान में उतरे वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एक गोल किया जबकि लियोनेल मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। मैच के आगाज़ से कबल मेसी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दोनों टीमों के साथ तस्वीर खिंचवाईं। गैलरी में मौजूद शायकीन को मेसी ने फुटबॉल को किक मारकर तोहफे के तौर पर दिया। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी ने भी इस फुटबॉल मैच का मुशाहिदा किया था। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी।
गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। ऑस्ट्रेलवी साहिल पर बड़ा हमला, साहिली इलाके बॉन्डी बीच पर फायरिंग में 12 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। हदफ सिडनी की यहूदी कम्युनिटी थी। मुश्तबा मुल्जिम नवीद अकरम को भी गिरफ्तार करने का पुलिस ने किया दावा। शाम में अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर सदर ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल, शदीद जवाबी कार्रवाई का ऐलान। मगरबी किनारे में इस्राएली फौज की वसी पैमाने पर छापेमार कार्रवाइयां, मुताद्दिद फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, सर्दी, भूख और प्यास से अमवात में इजाफा। हमारे लिए हमसाया ममालिक की सलामती और इस्तेहकाम की कलीदी हैसियत है, ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, वक्त की ज़रूरत। भारत ने माहौलियाती वादे वक्त से पहले पूरे किए। कौमी यौम तवानाई तहफ़्फ़ुज़ पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब, एवार्ड याफ्तागान और पेंटिंग मुकाबले के फ़ातिहीन की इज़्ज़त अफ़ज़ाई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल उर्दन का दौरा करेंगे। सिफारती ताल्लुक़ात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है ये दौरा। और जर्मनी में कम उम्र नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी की हिमायत, तजवीज़ को अवामी सतह पर खासी हिमायत हासिल। नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर से का फिलहाल नहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन नदीम को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।